Harar Mahadev, hello dearly beloved. If you are here watching this video, I am going to be covering a little bit of what we are listening in many different twin flame videos again and again, that this journey is about ascension. Twin flames are here to ascend, they are here to raise the collective consciousness of all beings around all earth. And what does it exactly mean? What is ascension? What is spiritual growth? We are going to be discussing all of that today because I felt like it's very important that we cover this today. क्योंकि कुछ टर्म्स ना हम बहुत बार सुनते हैं बहुत से ट्विन फ्लेम वीडियोस में, बट एक्चुअली वो अप्लाई कहाँ होता है और हम कैसे असेंड करें. मोस्ट ऑफ अस हैव दिस क्वेश्चन विद इन अस, लाइक हाउ डू वी असेंड, हाउ डू वी स्टार्ट आ जर्नी ऑफ असेंशन, यू नो. तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे आज के लाइव में. एंड फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट इज़ बाय डिफ्रेंशिएटिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड असेंशन. ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं. हमें लगता है कि ये दोनों एक ही सी साउंड करती हैं और इनका मीनिंग भी शायद काफ़ी क्लोज है, बट देर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड असेंशन. तो ये किस तरीके से डिफरेंट है? यूजुअली जब हम इस अर्थ प्लेन पे इनकारनेट करते हैं, व्हेन वी टेक दिस बर्थ इन दिस लाइफ टाइम, we have chosen a soul ascension. That is why our souls came here to come into this physical form in order to realize itself, right? तो spiritual growth जो है वो बहुत ही natural process है. That happens with all living creatures, that happens with all living beings. If you see any normal human being in his day-to-day life, if you are to talk to him, अगर आप उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप की जो विजडम है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, उसने आपको किस तरीके से चेंज किया है, वो बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे. लाइक जैसे वो 10 साल पहले थे या 15 साल या 20 साल पहले थे, वैसे वो आज नहीं हैं. दे हैव इवॉल्व, दे हैव चेंज्ड, एंड लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ने, लाइफ के लेसन्स ने उनको एक बहुत ही अच्छी सीख दी है, जिससे दे आर मोर वाइजर. That has made them more resilient, that has made them more loving, and this happens in every human being's lifetime. Spiritual growth is a very natural outcome. ठीक है, ये हमारे नेचर में है टू हील, टू ग्रो एंड टू इवॉल्व, बट दैट हैपन्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ वॉट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, और अगर एक इंसान नेचुरली, मतलब इवन इफ दे आर एथिस्ट, अगर वो भगवान में नहीं मानते, अगर वो डिवाइन एनर्जीज में नहीं मानते हैं, तब भी आप देखेंगे कि दे आर ग्रोइंग एंड दे आर इवॉल्विंग, वेदर दे नो इट और नॉट, वेदर दे confess that or accept that or not, they are growing spiritually. ठीक है, but that happens over a long period of time. Spiritual growth and spiritual evolution is a very natural outcome of your circumstances, of the people that you're meeting, of parts of yourself that you're seeing, and as a result of natural change taking place. क्योंकि हमें पता है ओ ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो probably I should not be doing that, I should not be hanging around with such and such people. So it's a very natural process. Spiritual growth is a very natural process. Now what is ascension? Ascension is a conscious choice. You are taking in the power of conscious awareness, and then you are moving forward through life, right? And it happens in a very short span. It happens in a very short amount of time as well. And ascension is always a choice. ठीक है, spiritual growth is when life is happening to you. लाइफ आपको घुमा रही है गोल गोल, और आप लाइफ के साथ में घूम रहे हो और सीख ले रहे हैं, राइट? बट ascension is it's like a laser focus that helps you move through life in a very short amount of span. That is why twin flame journey इतनी challenging होती है. And you will hear this in many places, that twin flame journey जो है, it's a journey of ascension. It's because we are choosing to evolve. Why are we choosing to evolve? Because we want to be in union with our twin flame. तो हमारा एक स्पेसिफिक गोल सेट है. We know that this is a spiritual journey, और हम मूव फॉरवर्ड करते हैं through the power of our own conscious choice. ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है? There are many different choices that we are presented with in our lives. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ चॉइस ऑफ अटेंशन. ठीक है, हम अपना अटेंशन कहाँ पे डाल रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी आर चूजिंग टू फोकस ऑन. क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, दैट इज़ योर फर्स्ट चॉइस.
द सेकेंड चॉइस इज एक्सेप्टिंग दैट यू आर ऑन दिस जर्नी. ये इन इट सेल्फ एक्चुअली ये पहली चॉइस है, बट एक्सेप्टिंग दैट यू आर ऑन दिस पाथ, ऑन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड रियलाइजिंग कि नहीं, ये हो रहा है ये मेरे साथ, एंड आई एम चूजिंग टू be on this path. I'm choosing to walk this path consciously, and I know that I'm on this path. It is happening for a very big reason. Although I might not see it right now, although I might not realize the outcomes right now, but I am choosing this path of ascension. ठीक है. Then there is choice of circumstance. जब हमारे आउटवर्डली रियलिटी में हमारे सामने कई सारी डिसीजंस आते हैं जिनको हमें चूज़ करना है, यू नो, एंड the power of conscious awareness is making the decisions, making the choices that are aligned to your path, to your spiritual goal of coming into union with your twin flame. ठीक है. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट ला रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक ले जा रही हैं. So that is a very very powerful choice that helps us ascend on this journey as well. Then there is the choice of thoughts and emotions which is happening internally, which is also very important क्योंकि 99% of the time you are not in constant communication with your twin flame. ठीक है. It's always like coming together, a magnetism and then a repulsion. Magnetism and repulsion. तो ये जो है coming together and separating, this happens so that we can clear certain lessons. जब हमारे ट्विन फ्लेम जो हैं नज़दीक आते हैं हमारे, जब हमारा कम्युनिकेशन होता है फिज़िकल रियलिटी में, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, तब वो हमें कुछ ना कुछ एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं जिस पे हमें काम करना है. वो हमारा होमवर्क, बेसिकली हमारे ट्विन फ्लेम हमारे लिए होमवर्क लेकर आते हैं और उस पर हमें काम करना है, उस पर हमें फोकस करना है. दैट कैन हेल्प अस ग्रो एंड राइज. एंड इस दौरान जो है हमें बहुत ही अपना जो अटेंशन है, अनडिवाइडेड अटेंशन उस पर डालना है, राइट. दैट इज़ वाई इट फील्स सो ओवरवेलमिंग. जब हम हमारे ट्विन फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट फील्स लाइक अ मिलियन थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि मिलियन थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर हैपनिंग एट वेरी सटल लेवल्स. वो आपको बोल कुछ रहे हैं, बट उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस कुछ और होता है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग कुछ और होता है. हम अपने ईगोइक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सुनते हैं और उसको रियलाइज़ करते हैं, बट हमारे ट्विन फ्लेम हमको एक डेप्थ से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. ठीक है. हमारी इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है उस टाइम. दैट इज़ व्हाई इट फील्स सो ओवरवेलमिंग एंड यू फील लाइक it's a very exhilarating feeling, but at the same time it's very very fearful as well. हमें इसलिए fear आ जाता है कि you know क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. That's why we take a step back, or probably your twin flame takes a step back to process everything that is happening. ठीक है. तो the separation phase is not because your twin flame is not in love with you. They were and they always will be in love with you. But it's just that the coming together and the coming apart is happening so that we can ascend, so that we can put our attention towards that which is needing to be accepted, that which is needing to be released, right. तो हमारा power of thought and power of emotion जो है, उस पर जब हम attention देते हैं, it's a choice. ठीक है. हमारे मन में क्या thoughts आ रहे हैं और हम क्या थॉट्स एंटरटेन कर रहे हैं हमारे ट्विन फ्लेम को लेकर, गॉड को लेकर, इस जर्नी को लेकर, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे अंदर, उस पर जब हम अपनी अवेयरनेस डालते हैं कि ओके, right now I'm having a negative thought about this, or right now this is a positive thought. So choosing to turn around the negativity and turning it into positivity is a conscious aware choice that you are making on this journey that helps you ascend on this path. और ये बहुत ही एक इट डज़ नॉट हैपन ओवरनाइट. हमें ये समझने की ज़रूरत है. इट हैपन्स ग्रेजुअली, इट हैपन्स स्लोली, क्योंकि बहुत सालों की कंडीशनिंग है. जैसा हम सोचते आए हैं, जैसा हमारा माइंडसेट बन गया है अपनी 3D रियलिटी को लेकर, अपने बचपन को लेकर, जिस तरीके के पैटर्न्स एस्टैब्लिश हुए हैं, उनको ब्रेक करके, उनको डिज़ोल्व करके आगे बढ़ना, उनको इंटीग्रेट करके ये समझना कि हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड विद इन मी. ठीक है. ये एक थॉट पैटर्न है, ये एक इमोशनल पैटर्न है जो मेरे लिए अभी तक शायद लागू होता आया है, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, इट्स नॉट हेल्पिंग मी, इट्स नॉट हेल्पिंग माई ट्विन, इट्स नॉट हेल्पिंग अस ऑन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी. सो दैट नीड्स टू चेंज, दैट नीड्स टू बी ऑल्टर्ड. तो हम जब वो अपना पावर वहाँ लगाते हैं, वी असेंड वेरी क्विकली. इट्स बिकॉज देर इज़ अ चेंज कमिंग अबाउट
It might be in a thought pattern, it might be in an emotional pattern, it might be in how we are relating to people, how we are responding to people. ठीक है, तो जब भी ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनको हम कंसिड्रेशन में लेते हैं तो वी मेक अ चॉइस टूवर्ड्स aligning with our true self, to align with our own love that we have within, with our own truth that we hold within. और जितना हम अपने लव और ट्रूथ में रहेंगे, जितना हम अपने आप को लव देंगे, उतना हम दूसरों को लव दे पाएंगे, अपने ट्विन को लव दे पाएंगे. और जितना हम अपनी सच्चाई के साथ में लेके चलेंगे, बहुत मुश्किल होता है सच बोलना, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके देख सकते हैं. आप अपने पूरे दिन में आप नोट करिए कि आप कितनी बार झूठ बोल रहे हैं. बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक दिन आप करके देखिए 24 घंटे, एंड उसी से आप में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा. दिस इज़ वेयर यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ असेंशन. आपके ट्विन तो आपको एक्टिवेट कर ही रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपको राइज करने की मदद कर रहे हैं, बट इतने साल क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ हीलिंग, इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ होल्डिंग दैट कॉन्शियस इंटेंशन वेयर आई नीड टू बी पुटिंग माई एनर्जी एंड अटेंशन इन. जहाँ भी आप अपना एनर्जी और जहाँ भी आप अपना अटेंशन डालते हैं वो चीज़ एक्सपैंड करती है, वो चीज़ ग्रो करती है, राइट. सो ये मेन डिफरेंस है स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल असेंशन में. असेंशन इज़ अ चॉइस, इट्स अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग एवरी डे इन एवरी मोमेंट, राइट. एंड इट्स नॉट, लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू अस, वी आर चूजिंग टू change, we are choosing to evolve, we are choosing to move things around so that we are in a better state of existence, so that we are in a greater flow, so that we are in a greater receptivity about what life is presenting to us. ठीक है, तो क्या डिफरेंट साइंस हैं मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस ऑफ असेंशन? हाउ डू यू नो for sure that you are ascending? ठीक है, the first thing that you will notice is that there is a change in how you carry yourself. There is a change in your own thought patterns, in the kind of thoughts that you're choosing to engage in. There will be a change in lifestyle. ठीक है, आपकी eating habits, आपके sleep habits, the different people that you engage in, the kind of places that you go in. ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है. आप ये नोटिस करेंगे कि पहले शायद आपको शॉपिंग में या मूवीज़ देखने में या पार्टिंग करने में जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, वो शायद वो चॉइसेस अब चेंज हो रही हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें आप कम्प्लीटली बंद कर देंगे, बट यू आर चूजिंग टू engage in more meaningful activities. You're choosing to engage in more uplifting material that you're consuming. It might be through movies, it might be through books, it might be through music also. आपका म्यूज़िक में जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है. Certain sounds that you have been exposing to, you know, that will move around. That you will notice that the kind of music that you were listening to in the past 5 years has changed. ठीक है, तो आप अपने अंदर जब भी ये चेंजेस महसूस करते हैं कि येस देयर इज़ अ सटल शिफ्ट दैट इज़ गोइंग ऑन एंड दैट हैज़ बिन थ्रू चॉइस एज वेल, यू विल नोटिस कि कुछ चीज़ें ना आपके साथ में वाइब नहीं कर रही हैं अब. दिस माइट बी थ्रू डिफरेंट consumption as well. This is consumption of material, this is consumption of food, consumption of drinks. कुछ चीज़ें जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, आपको बहुत खुशी देती थी, आपको जॉय अपलिफ्टमेंट देती थी, अब वो नहीं दे रही हैं, अब आपको बहुत हैवी और डेंस महसूस करा रही हैं, एंड यू वांट टू लाइक मूव अवे फ्रॉम दोज थिंग्स. दैट इज़ अनदर चेंज. Twin flames help us to purify and to polish our soul. Your soul is already pure. Your soul is already polished. There is nothing that requires to be done with your soul. Your soul is your true essence of being. It's just that ऊपर की जो गर्द है वो हम हटा रहे हैं. Everything that is not aligned with soul, that goes out. ठीक है, so it's very important to understand कि आपका soul हमेशा pure. Every soul is pure. Even the karmics that are there in your life, उनका soul भी pure है. Every soul is pure because that is divine essence in form, in physical reality. बट वो सीमिंगली वो नेगेटिव लग रहा है हमको. क्यों? क्योंकि वो सर्टन चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, हमको अच्छा नहीं महसूस कराता, हमको चैलेंज कर रहा है अपलिफ्ट करने के लिए, टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स, टू स्पीक अप फॉर आवरसेल्व्स, टू ग्रो विद इन आवरसेल्व्स. तभी वो अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स वेरी ट्रिगरिंग, राइट? तो that is one thing. Then the second sign of ascension is you come into a greater flow of life.
You start accepting more. You are more and more okay with what is. ठीक है, you don't want टू बी कंट्रोलिंग अबाउट स्टफ. आप नोटिस करेंगे कि जैसे अपने जर्नी में आप असेंड कर रहे हैं, आप में ज़्यादा और ज़्यादा रिसेप्टिविटी आती जाती है. आपकी जो फेमिनिन, इनर फेमिनिन क्वालिटी है वो ऊपर आ रही है. और दिस हैपन्स फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, बट इट हैपन्स दैट यू आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वट एवर इज लाइफ इज़ प्रेजेंटिंग टू यू. आप ज़्यादा अपनी वल्नरेबिलिटी में आ जाते हैं, है ना. यू आर मोर ट्रस्टिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. यू आर ट्रस्टिंग डिवाइन कि हाँ, ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, एंड इसमें से कुछ ना कुछ सीख है जो मुझे लेनी है. सो यू एक्चुअली लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस दैट इज़ अराउंड इन योर रियलिटी. सो ये एक और साइन है दैट यू कम इन टू अ बेटर फ्लो विद इन योर सेल्फ. दिस इज़ अ साइन ऑफ असेंशन. Then the third sign is you actually start vibrating on higher frequencies. Now what I mean by higher frequencies is that you come into an expanded love for yourself and for others. You have more respect for yourself and for others. You have more forgiveness for yourself and for others, and you have a greater realization of what you are here to do, है ना. तभी हम हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम कब आते हैं, जब वी बिकम मोर एक्सपैंडेड इन आवर बीइंग. हम अपने नेचुरल स्टेट में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. हमें अजीब नहीं लगता, हमें अटपटा नहीं लगता. अपने आप को हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरों के सामने और खुद के आगे भी, राइट. वी आर मोर फॉरगिविंग. यू नो, हमें बुरा भी लगता है. हमें जो चीज़ गलत हो रही है उस इंसान के लिए, जहाँ पहले हमें बहुत ही बैड वाइब्स आती थी या हमें खुद के लिए बुरा लगता था, वहाँ हमें दूसरे के लिए अब बुरा लग रहा है कि यार ये इंसान कहाँ जा रहा है. यू सी वेयर दे आर हेडेड एंड यू एक्चुअली फील बैड फॉर देम. यू वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो, बिकॉज इन अ सेंस इट्स a reflection of your being. तो you want to help them also, right? So this feeling of compassion that you hold for yourself and for others, you hold more space for yourself and for others. There is greater understanding for yourself and for others. तो ये 3 साइंस हैं कि आप असेंड हो रहे हैं, and it does not happen overnight. Please trust me. When this happens, this happens over a period of time when we pay attention to our dark sides, to our negative qualities, to our negative traits, to our own shadows, to all of the darkness that we hold within ourselves. Everybody holds that polarity within themselves, the light and the darkness. It's a constant play of polarity that is happening within us, and हमारा outer reality जो है वो केवल reflect करके हमें बता रहे कि what needs to change. क्योंकि बाहरी रियलिटी में जो आपको दिखाया जा रहा है, there may be negative behaviors going on, there might be people around you who are not taking the right kind of decisions, who are throwing their mental projections on you. Please understand that it is a reflection of your own inner being, and that is where the shift needs to take place. When we are unawakened, we want to change others, but when we are awakened, when we are on this journey of ascension, we want to only change ourselves. That is a golden thumb rule. तो अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि नो, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ, हाउ कैन आई बेटर माई सेल्फ, यू नो, what needs to be released right now within me. क्या चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, क्या चीज़ औरों को सर्व नहीं कर रही, क्या चीज़ दूसरों को एजिटेट कर रही है, क्या चीज़ मुझे एजिटेट कर रही है. इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी ऑन दिस पाथ ऑफ असेंशन. यू आर चूजिंग असेंशन. यू ऑलवेज चूज असेंशन. असेंशन डज नॉट हैपन टू यू. प्लीज़ अंडरस्टैंड. तभी कितने लोग हैं उनको सालों साल लग जाते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल. आपने सुना होगा कई लोग हैं इस जर्नी पे, ट्विन फ्लेम जर्नी में टेक ईयर्स एंड ईयर्स. क्यों लग रहे हैं इतने साल? क्योंकि देर इज़ दैट मिसिंग फैक्टर ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. आप कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहे हैं असेंशन. यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ. यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द शेयर ओवरवेलम ऑफ वॉट इज हैपनिंग टू यू. 11 तभी इतने साल लग जाते हैं. बट जब आप
बहुत ही सिंसियरली अपनी ट्विन फ्लेम पाथ में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अलाइंड हैं, अपनी ट्विन फ्लेम को रोज़ चूज़ करना पड़ता है आपको. यू विल हैव टू चूज़ योर ट्विन फ्लेम एवरी डे. यू विल हैव टू चूज़ दिस पाथ एवरी डे. कई बार होता है हम आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस जर्नी, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू अलाइन विद इट, यू नो, आई एम सॉरी, आई एम, दिस इज़ जस्ट टू मच फॉर मी. तो अब तो वहाँ क्या हो रहा है, आप गॉड से दूर जा रहे हैं. जो गॉड ने आपके लिए डिसाइड किया है, आप उसमें फेथ नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें ट्रस्ट नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे हैं. तो जो चीज़ आपके लिए बनी है, जब आप उससे हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आप अपने लिए अगेन इट्स लाइक यू आर फॉलोइंग इनटू स्पिरिचुअल ग्रोथ rather than ascension, right? So these are certain things that we need to be mindful of on this journey, and this journey is not a punishment. Of course it feels like it's a punishment क्योंकि आपको इतने झटके मिल रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशंस हो रही हैं, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ कंसर्न्स आएंगे, देयर माइट बी restrictions from society, there might be moral things arising up within you, you know, that are extremely challenging. But please remember that you are not siding with spiritual growth. This is happening to you so that you can ascend on this journey, and it's like it's a ticket to fast track ascension. Twin flame is a journey to fast track ascension. पहले के समय में भी स्पिरिचुअलिटी थी, पहले के ज़माने में भी लोग जप करते थे, तप करते थे, and they were choosing to realize their own true nature. But आपका twin flame जो है, they are like this bomb explosive of a ride. It's a roller coaster ride. And बहुत बड़ा मज़ा भी आता है क्योंकि आप enjoy करने लगते हैं. जब आप जर्नी को enjoy करने लगते हैं, बहुत lightness अपने आप आती जाएगी आपके में, because there is greater surrender. That resistance to life is not there. That resistance to your twin flame is not there. क्योंकि हमारे जो फियर्स हैं, हम उनको बहुत लाइटली लेके चलते हैं, एंड वी नो दैट वी आर हियर टू ट्रांसेंड आवर फियर्स. हम अपने फियर्स के आगे जाने आए हैं यहाँ पे. जितनी भी चीज़ें जो पहले होल्ड बैक कर रही थी, उनसे आगे बढ़ने, उनसे ऊपर उठने आए हैं. एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट यूजुअली लोग कहते हैं ना कि मूविंग ऑन टू हायर कॉन्शियसनेस इज असेंशन, एंड असेंशन इज ऑल अबाउट moving up and up in our consciousness level. Yes, there is an up and up, but it does not mean that it is like being better than others. ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअल जर्नी में कि ascension meaning you are better than others. No, ascension meaning your perspective on different things is expanding. You can accept more varied different perspectives of other people. आप चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने के लिए रेडी हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टिंग हैं. सो एज मेनी पर्सपेक्टिव्स एज यू अलाउ, यू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति आपके लिए लेकर आ रहा है, दिस मे बी योर ट्विन फ्लेम, दिस मे बी अदर्स ऑल्सो हु आर अराउंड यू, दे आर हेल्पिंग यू वाइडन योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ऑन वॉट ट्रू रियलिटी इज. एंड वी आर हियर टू रिकग्नाइज you know that other people are playing a role. They are teaching us this lesson in duality. The twin flame itself is duality. It's like one masculine, one feminine, but we are joined together to source. We share the same monadic principle. We share one source, we share God, we share source, and that is how we are connected. राइट. सो जस्ट लाइक दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर यू कैन सी, आज मैंने एग्जाम्पल के लिए आज ये लिया है, दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यू कैन सी लाइक इट इज़ सो मेनी डिफरेंट टिप्स हियर, अलग अलग पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये इंडिविजुअलाइज पर्सपेक्टिव्स हैं, ये इंडिविजुअलाइज एक्सप्रेशंस हैं डिवाइन के, बट एट द सोर्स ऑफ इट, एट द सबस्ट्रेटम ऑफ इट, एवरीथिंग इज़ वन, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी वन. इट्स जस्ट one thing that is appearing to be different things in this physical reality, and everything is you, right? Everything is emerging from you. तो जब हम
ये बेसिक ट्रूथ है एग्जिस्टेंस का, जब हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि सारे लोग जो आपके आसपास जो भी आपको नज़र आ रहे हैं वो आप ही का एक रिफ्लेक्शन है, आप ही का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है इस रियलिटी में, तो वी ऑटोमेटिकली बिकम एक्सेप्टिंग. वी डोंट वांट टू हर्ट आवरसेल्व्स, राइट. जैसे हम खुद को नहीं क्षति पहुंचाना चाहते, हम दूसरों को भी पहुंचाना चाहेंगे, राइट. सो इन दैट वी बिकम मोर होल, मोर एक्सेप्टिंग, मोर पेशेंट with others, learning that this journey is a big lesson in duality and non-duality. So we move towards God, source, energy, light, love, whatever you want to call it, and know that everything is one at the source of it all. Muskan is saying perspective towards this journey matters, and it's only in our hand how we take this. Exactly, that is what matters more, that is what is the driving factor. और बहुत बार हम जर्नी से गिर जाते हैं. इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग ऑल्सो. इट्स डोंट होल्ड दैट बैक अगेंस्ट यू. आई हैव फॉलन ऑफ मेनी टाइम्स ऑन दिस पाथ, एंड आई हैव फॉलन ऑफ लाइक इन अ ह्यूज वे. आई फेल ऑफ इन अ ह्यूज वे इन द सेंस दैट जैसे हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स रीड करते हैं ना, एंड वी अंडरस्टैंड दैट ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट असेंशन. तो मैं इस जर्नी से स्प्लिट हो गई थी, और मैंने इस जर्नी को निगलेक्ट कर दिया ये समझते हुए कि नहीं, आई एम हियर ओनली टू रियलाइज माई ट्रू नेचर. बट फिर डिवाइन मुझे वापस खींच के लाए कि नो, यू आर हियर टू एक्सपीरियंस यूनियन इन दिस फिजिकल लाइफ, इन दिस लाइफ इटसेल्फ, इन दिस लाइफ टाइम. Union is meant for me. That is why, even after realizing the highest truth of self, there was still so much of pain because I was still in separation with myself. Not choosing this journey, not choosing this path, rejecting this journey, right? So I fell off in a major way, but that also helped me gain clarity about myself, because those 2 years I was completely invested in myself. I was completely invested in my own realization of self and truth and love. राइट. बट देन वी अगेन कम बैक, बिकॉज वो डिवाइन करेंगे ही, बिकॉज ये चीज़ जो आपके लिए बनी है उससे आप भाग नहीं सकते. ज़्यादा देर आप नहीं रह सकते इस पाथ से अलग. यू हैव टू कम बैक, एंड डिवाइन डज दैट. You will notice that. So again and again, falling off the path is also a process that we learn to accept, and then we only choose. Choosing this journey is also a part of the ascension process. It's like choosing and knowing that yes, this is happening to me, this is very real, and I'm here to realize certain things about myself and about others through this twin flame journey. तो जब हम ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम मोर लविंग, मोर कंपैशनेट, मोर फॉरगिवनेस लाते हैं अपने अंदर, तब हम असेंड करते हैं, राइट. एंड अवेयरनेस इज़ ऑलवेज अ चॉइस. वी कैन चूज टू बी अवेयर, और वी कैन चूज टू इग्नोर what is happening within us, what is happening within this journey, what is happening within this connection, what is your twin flame showing you. We can choose to ignore, we can choose to turn a blind eye, but we are only extending that separation, right? So that is what is coming across today for all of you. I really hope this helped shed some light on certain aspects. Also there is a greater need for us to recognize what needs to change. तभी मैं ये सब बोल रही हूँ आज. देर इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नीड फॉर अस टू रिकग्नाइज कि क्या बदलना चाह रहा है हमारी लाइफ में, और वो सब चीज़ें आएंगी. यू कैन सी इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, इट्स गोइंग टू बी अ फिनोमिनल मंथ. माइंड यू, this is going to be a phenomenal month, क्योंकि the kind of things that we are experiencing, the kind of energies that are heading towards us, it's forcing us to go within, right? And अगर आपने अभी तक attention नहीं दिया है उसको, तो अब आपके लिए वो opportunity खुल रही है कि आप consciously उस चीज़ पे focus करें, so that you can come into union with your twin flame, and you before that you can come into an inner union within yourself with God, source, divine light, love. ठीक है, तो आई होप दिस हेल्प यू टुडे. इफ यू डिड, kindly let me in the comments down below. I love you so much. Take care, stay blessed.